Friends, just we have completed, we have finished present tense and past tense. Now the remaining part of tense is future tense. And so very easily we can understand future tense, bhavishyat kaal. Although in the world, in England, especially in England, the English don't categorize tense into three parts. They say that there is only present and past. Future is indefinite. So we should not have need to understand the future tense. But in India, especially, or in Asian countries, we have feeling of some action that will happen in coming days, and that will be denoted by future. So it is essential to have future tense, knowledge of future tense. So certainly, I would like to say you, I'd like to teach you about future tense. Uncertainty, but it is. There is meaning of. Suppose कल हम लोग वहां जाएंगे. This statement. Now, this statement says about future. So we need have idea of future tense. And so just I am giving you in detail the future tense. So likewise, as we have studied, as I told you, in present tense, in past tense, four types of simple present, present continuous, present perfect continuous. Likewise, we have also simple future, and we will discuss it in the light of the sentence, some sentences, and the identification of the words by which we can identify that the sentence that is given to you is in future or not. So I will discuss it. तो सिंपल फ्यूचर का मतलब, वैसे फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्य, आने वाले समय में जो काम होगा उसी को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. आने वाले समय में जो काम आने वाले समय में होगा वही होगा फ्यूचर टेंस. मैं जाऊंगा, आप पढ़ेंगे, वे लोग आएंगे, कल वर्षा होगी, ये सब क्या है? तो आने वाले समय का बोध कराता है, काम का बोध कराता है, जो काम होगा आने वाले समय में. तो इसलिए फ्यूचर टेंस को जानना जरूरी है. और उसका पहला है सिंपल फ्यूचर. जैसे सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट था, उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर. तो एक इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान क्या है? क्रिया के अंत में गागेगी, गागेगी, क्रिया के अंत में नाउ एंडिंग गागेगी. तो ये सेंटेंस हमारा गागेगी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, गागेगी आ गया ना. तो
ये मैंने दिया 3 सेंटेंस मैंने आपको दिया। पहला सेंटेंस, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। क्या? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर गा लगा हुआ है। वे लोग साइकिल से जाएंगे, गे लगा हुआ है। और कल वर्षा दिल्ली से आएगी, गी लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं गा गे गी लगा हुआ है। बिल्कुल आसान है ये पहचानना कि सिंपल फ्यूचर है और इसका रूल भी बड़ा आसान है। पूरे टेंस का रूल आसान है, पूरे अंग्रेजी का रूल बड़ी आसान है। बिना हिचक के, बेहिचक, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन ट्रांसलेट every sentence if you pay attention towards my words, towards my chapters, whatever I have done for you. तो आपको ये देखना होगा और आप सब काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा पकड़ हुआ ना, वे लोग साइकिल से जाएंगे, कल वर्षा दिल्ली से आएगी, ये सब हुआ। अब इसका रूल पहले हम जानेंगे कि रूल क्या है। बस वही पुरानी कहावत, that is an old story that I am telling you again and again. That is subject, helping verb, main verb, object, complement. I am tired of saying this formula again and again. And certainly you must have knowledge, and this formula should penetrate in your mind. There is no hesitation to say you, to tell you this formula. बहुत आसानी से एक ही फार्मूला अंग्रेजी के पास, एक ही फार्मूला अंग्रेजी लिखने का, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। नो अदर फार्मूला इन इंग्लिश, बिलीव मी, कोई फार्मूला नहीं। ए टाइम विल कम when I will tell you each and everything in detail. I will tell you, I will teach you to write something, an essay, a letter, paragraph writing, and all these, in all these, you will have to apply whatever I mentioned you. So, this is your formula. Shall will. अब कहाँ पर shall लगाएंगे, कहाँ पर will लगाएंगे? भाई ब्रिटिश इंग्लिश में shall का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन, will का प्रयोग होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन में। लेकिन अभी अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो गया है कि अमेरिका वालों ने तो भाई पूरे वर्ल्ड को हर तरह से अपने कब्जे में रखना चाहा है। भाषा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, या कहीं पर दबदबा करने का काम हो, ये चाहते हैं कि सब मेरा ही चले। तो भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने क्या कर दिया, अपना एक वर्चस्व कायम कर लिया है। और वह क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं करेंगे, सीधे विल का, सीधे शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम शैल करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जहां बिल्कुल निश्चित है कि इस काम को हमको करना है तो उलट देंगे, उसको रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड थर्ड के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आपकी मर्जी, एज यू विश, आपकी मर्जी, आप जैसे प्रयोग करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सब ठीक है। बाकी तो सब वही है, पहले वाली कहानी। मेरा भाई स्कूल जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ये कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्यों, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो माई ब्रदर, ये थर्ड पर्सन है, तो हमने ब्रिटिश इंग्लिश का पालन किया।
My brother will go to school. वे लोग बस से आएंगे. They will come by bus. हम लोग इस काम को करेंगे. We shall do this work. अब इसको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोनिगेटिव बनाना है. ये सब तो भाई सीख चुके हैं आप. इससे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है. निगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? नोट लगा देंगे. अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में कर देंगे. ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको यहाँ लाएंगे और सब्जेक्ट में यहाँ लाएंगे, मेरा काम हो जाएगा. तो ये सब जो है अब ये बताने की चीज़ नहीं रह गई है. अब खुद आप इसे कर सकते हैं. एक दो एग्जाम्पल लेकिन मैं दे देता हूँ. मैं वहाँ नहीं जाऊंगा. I shall not go there. क्या वर्षा होगी? Will it rain? कैसे वर्षा होगी? How will it rain? हो गया. ये हमारा सब बनाना है. इंट्रोगेटिव निगेटिव सब तो मैंने आपको बहुत बार कहा है, उसको आप ध्यान से देखें, आसानी से आप समझ जाएंगे. कोई बताने ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है. अंग्रेज लोग तो दो ही टेंस मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन हम लोगों को चाहिए फ्यूचर भी चाहिए, इसलिए ये फ्यूचर में चलेगा. तो हमारा ये हो गया, ये सिंपल फ्यूचर कैसे बना, क्या बना, मैंने आपको बतलाया. बिल्कुल फार्मूला वही है. आप ध्यान देंगे, आप कमेंट करेंगे, हम आपको बतलाएंगे, कहीं कोई अंतर नहीं है. हेल्पिंग वर्ब का अंतर जरूर है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की संख्या तो 24 मैंने आपको बतलाया है. 24 24 हेल्पिंग वर्ब है, और 24 हेल्पिंग वर्ब है तो उस 24 का यूज तो कहीं ना कहीं तो जरूर होगा. तो आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हर जगह हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है. बाकी जो टेंस में होगा 12 10 12, बाकी जो बच जाएंगे उसका दूसरी जगह यूज होगा. टेंस में नहीं होगा, उसका दूसरी जगह होगा, तो उसकी भी चर्चा होगी. लेकिन तत्काल अभी ये जो टेंस हमारा हुआ सिंपल फ्यूचर, ये समाप्त हुआ. अब इसके बाद 2 नंबर टेंस, इसका फ्यूचर का अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.